Good morning, dear students. I am Dr. Sarang Dote, Assistant Professor, Sri Shivaji Science College, Nagpur. This is the part 3, that is chemical reactions. That is अपना जो chapter चालू है वो है metal ligand equilibrium in solutions. This is part 3. इस part 3 में डिस्कस करने वाले हैं what is the meaning of a Chillet effect and its thermodynamics origin. So before start with this main topic, just some basics. Chillet was first proposed by the Morgan and Drew in the 1920s. The Chillet effect results in the enhanced affinity of a chelating ligands for a metal ion compared to the affinity of a collection of a similar non-chelating monodentate ligands for the same metal. Okay, जहां पर 6 membered 5 membered ring फॉर्म होती है तो उस केस को बोला जाता है चिलेट. और ड्यू टू दिस चिलेट the larger value of overall formation constant, so that the chillet complexes are more stable as compared to the monodentate. Okay, we will see that later on. The Chillet effect or the chilation may be simply defined as the equilibrium reaction between the complexing agent and the metal ion, characterized by the formation of two or more bond between the metal. Two or more bond between a metal and the complexing agent, resulting in the formation of a ring, structure including the metal ion. This is known as the Chillet effect. This is known as what? Chillet effect. Now, the Chillet effect we discussed. Now we are going to see some characteristics and features of chillets. तो उसमें से पहला है that is type of ligand or ligand type. One of the most obvious feature of the chillet is that only polydentate ligands are capable forming a chillet complexes. Only polydentate. The ligand can be a bidentate, tridentate, or even hexadentate, but it must have more than one donor set. Remember this thing. Monodentate ligand में एक ही donor set होता है. Where अगर मैं बात करता हूँ bidentate, tridentate और hexadentate की, तो उनके पास more than one donor sites होने चाहिए. More than one donor sites होने चाहिए, तभी जाके वो चिलेट फॉर्म हो सकता है. जैसे in this case डायअमाइन के केस में अगर आप देखोगे तो ये दो डोनर साइट्स होते हैं, यहाँ से और यहाँ से, लाइक दैट. तो सो दैट यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा विद मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इट इज द रिंग फॉर्मेशन एंड दिस इज द चिलेटिंग इफेक्ट. अगर सपोज एक ही साइड से अगर होता डोनेटिंग ग्रुप तो फिर यहाँ पर चिलेट फॉर्म नहीं होता. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ रिंग and hence this will be the more stable as compared to the others. Here are some examples. Structure of the chillet complex with the cobalt 2+, it's a tridentate. This one is the tridentate ligand. This one is the tetradentate ligand. Here is the pentadentate, hexadentate, like that. As soon as the number of ring is increases, there the chillet effect is also increases. This is the type of ligand. Next one is we are going to discuss the stability. The chelating agents bind with the metal center with a suitable size firmly, and the bond can be a covalent or the coordinate. This makes chillet complexes more stable. This makes the chillet complexes more stable than their non-chelating counterparts. Here we are taking one example. This is the hexaamine ferrous 2+, hexaamine Fe2+ chelating. If suppose the NH3 group is replaced by the phenyl, that is diamine. Okay, so in that case there is a formation of a chillet. ये जो है यहाँ पर chillet form हो रहा है, ये chillet form, but यहाँ पर normal है. But so that as compared to this one is the more stable, more formation constant due to the chilleting effect. Also, it also observed that 5 and 6 membered ring chillets are more stable than the other due to the less steric strain. ध्यान में जैसे से नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए. बट रिमेंबर दिस थिंग, 5 and 6 membered ring are more stable than other because as soon as the members are increases, the steric factor is also going to increases and hence stability may decrease. Okay, which do not have to prepare the 5-1. While the chelating ligands like acetyl acetonate, which do have the double bond, perform the 6 membered ring. Here one examples.
देखो ये एग्जांपल, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग, so that log k is very small, but यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 member strings are there, so that log k की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, तो बट अगर सपोज 5 और 6 के बाद अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग अगर है, तो देखो कि आप यहाँ पर log k की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, so that 5 and 6 member rings are more stable as compared to the other 4 and 7 member ring comparison. So this is a very important. Next one is the bulky groups. Why the stability of these 5 and 6 members are more? The chelating with the bulky groups are usually less stable. जहाँ पर चिलेट लिगेंड्स आपको मिलते हैं और उसके साथ अगर बल्की ग्रुप्स अगर कुछ अटैच होंगे, तो वो हो गए आपके लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ऑफ व्हाट, as soon as the steric factor increases, there is a decrease or weakening of a metal ligand bond. मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होना चालू हो जाता है ड्यू टू द स्टेरिक इंटरेक्शन, एंड हेंस एक एग्जांपल देखो, metal complexes involving 2,2 bipyridine and its derivative as a chelating agent ligand. The structure of a bivalent ion complexes with the normal 2,2 bipyridine or the 4,4 dimethyl 2,2 dipyridine as the chelating ligand clearly shows that former is the less steric hindrance and therefore is a more stable. Diagram structure देखो यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वन जो है ये जो है यहाँ पर इसका ये जो है ये कौन सा है आपका 2,2 bipyridine, दिस इज द 2,2 bipyridine, 2,2 bipyridine structure। बट अगर सपोज यहाँ पर अगर मैंने CH3 ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया CH3 तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा 4,4 डाइमिथिल 4,4 डाइमिथिल 2,2 bipyridine। So due to this methyl group there is a steric strings are there, यहाँ पर अभी steric सराउंडिंग बढ़ रहा है, and due to this मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड जो होता है वो वीक होना चालू हो जाएगा, एंड हेंस यहाँ पर log k की जो वैल्यू है फॉर दिस केस इज डिक्रीजेस। सो जहाँ पर लेस स्टेरिक स्ट्रेन होगा, लेस क्राउडिंग होगी, लेस बल्की ग्रुप होगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर। ओके, दिस इज द important. Next one is the thermodynamic explanation of what the chelation. ये thermodynamics origin है, किस टाइप से thermodynamics काम कर सकता है वो देखेंगे। How to find out the stability by using a chelation effect. तो basically सबसे एक simple एक principle देखो, we know that gives free energy change in terms of enthalpy, in terms of entropy we have the equation delta G0 is equals to delta H minus T delta H। ये जीरो का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, डेल्टा G0 माइनस T डेल्टा H, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपने पास, गिव्स फ्री एनर्जी। इसी को अगर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT LH की भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, नाउ सी प्रिंसिपल driving force for the chelation phenomena is the stability gain. Okay, stability gain arising from the increasing the entropy। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, एंट्रोपी, डेल्टा एस का मीनिंग होता है चेंज इन एंट्रोपी, एस इज व्हाट, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस, क्या मीनिंग होगा, रैंडमनेस। ओके, सो देखो एक एग्जांपल देखोगे। सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा एस रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा, ओके ध्यान में रखोगे, डेल्टा एस चेंज इन डेल्टा एस जितना ज्यादा होगा उतनी ये डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव आएगी। रिमेंबर दिस थिंग, ओके, जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना आपका मेटल क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना आपका मेटल क्या होगा, स्टेबल। बिकॉज आपके पास देखो एक इक्वेशन है एनएमसी, जितना जी पॉजिटिव नेगेटिव होगा उतना ये भी स्टेबल बनते रहेगा। सो दैट एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो सो दैट डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव, एंड हेंस द लॉग फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगा इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, एंड वहां पर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जाम्पल अभी देखो क्या बोला जाता है इसमें। The enthalpy change between the non-chelating and the chelate is almost negligible
because of a similar metal ligand donor type. Okay, the free energy change is primarily governed by the value delta S, that is entropy. Furthermore, it follows the equation, that is a 39, the delta G0 will become the more negative. जितना ज़्यादा negative होगा, with the more positive delta S value, which turns would increase the value of the stability constant. Hence, the stability of metal complexes increases with the chelation as it occurs to the increment in the entropy. जैसे जैसे इंट्रॉपी बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर डेल्टा एस की वैल्यू जो बढ़ने वाली है उसके साथ ही डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी एंड हेंस द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज व्हाट इंक्रीजेस. एक एग्जांपल देखो, एंट्रोपी किस टाइप से निकालना पड़ता है वो भी समझो. यहाँ पर tetraacocadmium when they react with 4CH3NH3, okay, this is a इथिलामाइन. ओके, ये कौन सा है मेरा इथिलामाइन, इथिलामाइन या फिर इथानामाइन भी आप बोल सकते हो. इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा. तो चलो देखो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है 1 मोल, रिएक्टेंट है कितना है 4. तो इस केस में रिएक्टेंट के साइड में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 5, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका भी कितने मोल्स हो रहे हैं टोटल 5. तो सो दैट यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, so that there is no change in entropy. Entropy में that is randomness कुछ भी जाता है, ये नॉर्मल है. दूसरा एक एग्जांपल है देखो, अगर सपोज इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं टेट्रा ये एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पर मैं 2 मोल्स ऑफ इथिलीन डायमंड लेता हूँ. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथिलीन डायमंड, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर मैंने कितना दिया 2 मोल्स ऑफ इथिलीन डायमंड. 1 + 2 = 3 मोल्स. तो रिएक्टेंट के साथ में कितने मोल्स है 3 मोल्स है. बट अगर मैं प्रोडक्ट की अगर बात करता हूँ, प्रोडक्ट के इसमें कितने मोल्स हो रहे हैं 5. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, सो दैट यहाँ पर एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ गया है. ध्यान में रखना, रैंडमनेस यानी डिस्टर्बेंस होता है. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम यही रिएक्शन पढ़े. देखो अगर 4 मोल्स है प्रोडक्ट के सॉरी रिएक्टेंट के साइड में तो आपको प्रोडक्ट भी 4 मोल्स का ही मिलना चाहिए था. ठीक है, ये नॉर्मल होता है. यहाँ पर एंट्रोपी 0 है, कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी रैंडमनेस नहीं. बट इस केस में देखो रिएक्टेंट आपके पास 3 मोल्स है और प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हैं 5 मोल्स, तो यहाँ पर रैंडमनेस हो रहा है. तो सो दैट यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है इट बिकम मोर पॉजिटिव, और ये मोर पॉजिटिव होने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो होगी निगेटिव, और जितना डेल्टा जी निगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा. दूसरा एक एग्जांपल देखो, अगर मैं ये हो गया डायमाइन. ओके, अगर मैं ट्राइअमाइन लेता हूँ, ट्राइथिलामाइन लेता हूँ, ट्राई, तो अगेन 1 + 1 2, रिएक्टेंट के साइड में 2 मोल्स है और मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट कितना हो गया अगेन 5. तो यहाँ पर डेल्टा जी की जो वैल्यू है एज और क्या होगा बढ़ेगा. तो सो दैट एज सुन एज द इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस. तो देखो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीजेस इन केस ऑफ टाइम इज हायर देन द इथिलीन डायमंड, and hence this complex, this one is the more stable as compared to this. Okay, ये समझ लो नंबर ऑफ मोल्स. और ये हो गया थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट कि चिलेट इफेक्ट क्यों स्टेबिलिटी शो करता है. ओके, कुछ अदर फैक्टर्स भी देखते हैं. फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस. उसमें से फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द चिलेट रिंग. वी ऑलरेडी डिस्कस 5 और 6 मेंबर चिलेट रिंग्स होंगे तो मोर स्टेबल होते हैं than the 4, 7, 8 और हायर मेंबर रिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन. जितना बढ़ेगा उतना ही, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा होता है नंबर ऑफ चिलेट रिंग एंड द नेचर ऑफ द मेटल आयन. It has been observed that the number of donor site is increases. The stability of a metal chillet is also increases. Okay. Furthermore, the stability of chillet complexes was also found in accordance with the Irving-Williams series. Irving-Williams series फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, आपको पता होगा. तो यहाँ पर अभी ध्यान में रखना, जितना डोनर साइट्स बढ़ेंगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए के लिगैंड है ए और ये एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. बट अगर मेरे पास एक दूसरा लिगैंड है ए और ए बी, ये दोनों साइड से लिगैंड, ये दोनों साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. सो दैट इसके पास 2 डोनर साइड ए और बी, इसके पास एक ही है. दूसरा है मेरे पास पी क्यू आर, तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 साइड से. तो एज सुन एज द नंबर ऑफ डोनर साइट इज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज आल्सो इंक्रीजेस. यहाँ पर देखो एग्जांपल, मेटल कॉम्प्लेक्सेस दिस वन, नंबर ऑफ चिलेट रिंग 0. तो वैल्यूज ऑफ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट
ओके, यहाँ पर मेटल Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, Zn 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, आप कोई भी एक मेटल के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पर NH3/4 है, तो यहाँ पर दोनों साइड एक ही है, तो चिलेट रिंग फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर, 0। तो देखो यहाँ पर log B की वैल्यू देखो इस टाइप से आपको मिलेगी, इंक्रीज होगा यहाँ तक और लेटर ऑन डिक्रीज। बट अगर मैं इथिलीन डायमाइन लेता हूँ, ठीक है, EN इथिलीन डायमाइन, तो चिलेट रिंग कितना फॉर्म होगा, 2। तो देखो यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो देखो यहाँ पर as soon as the ring size is increases up to the pen 5 मेंबर तक, तो यहाँ पर log B की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती हो जाएगी। एंड इंक्रीज अगर हो गया तो दैट मीन्स आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। हर एक मेटल के केस में देखो यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग साइज इंक्रीजेस वैसे वैसे यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। Next one is the resonance effect. The resonance stabilization of a chilled ring also enhance the complex stability. Okay, जैसे एसिटिल एसीटोनेट अमाइन, इस केस में ओके जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी हाई log B की वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 3 रिंग फॉर्मेशन हो रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। चलो ये का एग्जांपल है। So due to this resonating structure, this complex is more stable. So as soon as the resonance effect is increases, the stability of a metal is also what increases. Next, fourth number is Lewis base strength and charge of ligand. Kelvin and Wilson studied the copper 2 plus. Okay, copper 2 plus chelate complexes prove that the stability of chelate complexes increases with the increase the basic character. Now, what is the meaning of a basic character? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जो होती है उसको बोला जाता है बेसिक कैरेक्टर। अगर लिगैंड की अगर बेसिक कैरेक्टर अगर बढ़ती है तो ध्यान में रखना वहां पर फॉर्मेशन जो होता है मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का वो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए वहां पर फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा एंड साइमल्टेनियसली स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोर। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, the ethylene diamine or triethylene form a more stable complex than the anionic ligands like oxalato and glycine because इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एज कंपेयर टू लिगेंड्स लाइक ऑक्सैलेटो एंड ग्लाइसिन, इनकी टेंडेंसी कम होती है। जैसे यहाँ पर जैसे ये जो होता है डायमाइन ये मोर बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सैलेटो ग्रुप की कंपैरिजन, इनकी टेंडेंसी काफी कम होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एंड हेंस log B की वैल्यू देखो इसकी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, सो दैट इट फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग। देन स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू द लार्ज लिगैंड, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट जितना लार्ज ग्रुप होगा उतना आपका कॉम्प्लेक्स कैसे होगा लेस स्टेबल फॉर्म होगा। इसका एक एग्जांपल गिवन दिस वन यहाँ पर देखो लेस स्ट्रेन मोर स्टेबल log B की वैल्यू देखो 20.5 यहाँ पर, बट वही के साथ अगर मैंने एक एक्स्ट्रा रिंग अगर बढ़ा दिया कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया यहाँ पर और रिंग साइज अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टेरिक स्ट्रेन अगर हो जाता है तो log B की वैल्यू देखो डिक्रीज होती है, सो दैट दिस विल बी द लेस स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो है आज आपने डिस्कस किया है कि चिलेट इफेक्ट एंड इट्स थर्मोडायनामिक ओरिजिन, हाउ टू कोरिलेट द थर्मोडायनामिक्स विथ द इफेक्ट ऑफ चिलेट, और चिलेट की वजह से किस टाइप से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते वो डिस्कस कर लिया है। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द थर्मोडायनामिक्स ओरिजिन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगैंड्स, देन द other factors that affect the chelate stability, okay, stability of a chelate complexes, okay। so यहाँ पर हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेशन और कैलकुलेट द फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय द वेरियस मेथड, okay। so thank you।